So initially we have learned that JSP life cycle, JSP coding standard, now some JSTL tag, and within that JSTL tag we going to learn some more tag, and definitely some tag are reusable tags also, so we can reuse within another page also. So we will see how do we manage reusable component in the website or reusable sections in the website. So with the help of a JSP page, we can build reusable sections, and with that section, we can create pages. So whenever we create any page, we definitely having some sections that is common to all the pages, right? Suppose header section is almost common in any of the website, and footer section is also common in website. So these sections, how do we maintain this section, that the maintenance should be the easy, and whenever we change anything within that section, then that change is reflected automatically to all the pages that having that contain that section. That means कि जहाँ भी हम लोग वो सेक्शन यूज कर रखे होंगे, तो हम एक कॉमन प्लेस पे चेंज करेंगे, एंड वो कॉमन प्लेस पे चेंज करने से वो सारे पेजेस पे चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो विद इन दैट JSP वी हैव द वे. So first, we have to create one page that contain all the sections. Suppose हमको एक home page बनाना है, and home page home dot home dot HTML ऐसे है, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरा हेडर सेक्शन होगा, फुटर सेक्शन होगा, एंड बीच का जो सेक्शन होगा दैट इज द कंटेंट सेक्शन, जो कि पेज पे चेंज होते रहता है. जिस टाइप का पेज होगा उस टाइप का उस पेज पे कंटेंट होगा. ठीक है. तो हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं? तो हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन एंड कंटेंट सेक्शन, बेसिकली 3 सेक्शन में पेजेस डिवाइड होते हैं जनरली. और भी आज के समय में तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारा सेक्शंस होता है, तो अकॉर्डिंगली तुम उस सेक्शंस को यूज कर सकते हो. तो जो हेडर सेक्शन है, जो फुटर सेक्शन है, उसको यहाँ पे बनाना है, एंड उसको फिर रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह यूज करना है. तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट हम एक यहाँ पे बूटस्ट्रैप तो हम नहीं यूज कर रहे हैं, सो आई हैव टू यूज सिंपल टेबल. Within that table we are using tr. Suppose we have 3 rows for the 3 sections, and here we have the header section where we can put anything, sorry, not directly within that 3D. And this is second tr, which contained content section. And third GD, which contain the footer section. Just I'm assuming, and within that section you have lots of things, like in the header section you have menus, you have carousels, you have the sliders or something like that. Content section having lots of things, like for the registration page the registration form is there, for the login page login form is there, for the profile page is there, like that. And within the footer section we have some short links and useful links which are kept under the footer section, and definitely copyright and all that written within the photo section. So you have to design accordingly. I'm only going to demonstrate how do we create reusable sections
and how do we maintain that reusable section, and whenever we change anything within the common place, that is going to be reflected on all the pages which consuming that particular section. So this is basically the sections, and इस तरह से अगर हम sections बना के रखें, now we have to create JSP pages for the sections, particular sections. So accordingly, first we are going to create the header.jsp. Second, we are going to create the footer.jsp, and third, we are going to create that home page. So home.jsp. So within that header.jsp, we have to put this line, because this complete line, whatever there is a design within this particular section, we have to put. That means कि whatever there is, we have to copy it and paste in the now. ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होगा, सिंपली हम यहाँ क्या रखेंगे, एक टियर, and within that footer section ये कुछ भी नहीं होगा, just we are keeping that footer section. Only this much is going to be, मतलब जितना जो कुछ भी footer section का डिजाइन है वो footer में होगा. Now within this home page we have to create the same table like a structure. And within that table, that header comes from the header.jsp and footer comes from the footer.jsp, and the content itself is going to be written over this page only. So यहाँ पे हम कैसे उस पेज को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे इस पेज को कॉल करने के लिए अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, again percent that are tag available in this particular JSP, and we have to make it, call it include, and where we have the file properties, and within that file properties we have to name that file, that is footer, sorry, first this is the header section, header dot JSP. So whatever is there in the header.jsp page, that is going to be called over here. Then second section is tr, and this is the content area which is going to be changed. So this is not going to be in common place, and जो भी यहाँ पे content में है, suppose यहाँ पे registration page होगा तो हम registration content को यहाँ पे डालेंगे, and then after ये tag, and this is the content section, and after that we again have to use the footer section. So for the footer section we again going to use include file equals to footer.jsp. This way we can having the reusable components, and that is the reusable page here, and that is also known as component. So we have reusable component, and definitely this header and footer section is called from multiple pages and maintained in one place. So this is the header section area, and this is the footer section. Whatever you want to include in this footer section, you have to write here, because this is included in this home.jsp page. So for the designing part, that मैंने ये बोला भी था कि JSP basically view के लिए होता है. तो for view designing and maintaining reusable component is easy in JSP in comparison to Servlet. Servlet में ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे ये easily हम लोग कर सकते हैं, because view designing purpose के लिए ज़्यादा यूज होता है. तो हम लोग यहाँ पे डिजाइन, चूंकि JSP में डिजाइन और सर्वर दोनों ही फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास इनलाइन कोडिंग करने का. सो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं. नाउ अगर हम इसको रन कराएं,
दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट को सर्वर पे पब्लिश करता है ये फर्स्ट टाइम। जब भी सर्वर स्टार्ट होगा तो ये करेगा, दैट इज वाई फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है। यहाँ पे पहले के सिलेबस में कुछ कुछ था जो कि स्टड्स वगैरह भी पढ़ाया जाता था, तो स्टड्स वगैरह का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है और वो सब थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। स्प्रिंग का भी है बना हुआ, स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्टड्स। डेफिनेटली इजी भी कंपोनेंट्स भी हैं यहाँ पे, दैट इज वाई थोड़ा टाइम देता है। See, this home.jsp page having all the sections जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रखा था। तो header section is coming from the header.jsp page and footer section is coming from the footer.jsp page, and this is the contained area where we can keep according to the page. So जैसा भी होगा यहाँ पे हम उस तरह से मेंटेन करेंगे। तो सपोज हेडर में हम अगर कोई चेंज करते हैं, यहाँ पे सपोज हेडर में हम एक लॉगिन का लिंक डालते हैं, तो ये हमको अब पेज, जितना भी पेज होगा उस पर लॉगिन का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। एक और पेज हम लोग क्रिएट करते हैं तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज वेब पेज पे ये होम पेज हम क्रिएट किए, अब हम यहाँ पे एक सपोज कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाते हैं, contact.us.jsp, ठीक है। तो contactus.jsp again is going to look like something like this, so we need to, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड ये कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है, कि पेज का जो नाम रखेंगे अकॉर्डिंगली वहां पे हम उसका पूरा काम करेंगे। एंड यू हैव टू मेंटेन द जीयूआई बिकॉज कि यहाँ पे जो भी पेज होगा उसमें कभी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि एक ही टीडी में काम हो, दो टीडी में काम भी हो सकता है, तो यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट, तभी ये, अदरवाइज अलाइनमेंट खराब हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन करते हैं, contactus.jsp, सी दिस contactus.jsp में भी वही हेडर एंड फुटर कॉल हुआ, और जो कंटेंट एरिया अकॉर्डिंग टू पेज कंटेंट एरिया पे जो काम करना है वो कर सकते हैं, बट दीज आर द कॉमन सेक्शन, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन इज गोइंग टू बी कॉमन। सो हेडर एंड फुटर सेक्शन में अब हम कुछ भी रखेंगे तो वो एक जगह चेंज करेंगे और वो सारे जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। हम दूसरे टैब में होम वाला पेज भी खोल लेते हैं ताकि तुम देख सको ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई हैव टू, ये मेंटेनेंस पार्ट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। सपोज ये मेरा एक लॉगिन है, अब यहीं पे हम एक कॉन्टैक्ट का भी रेफरेंस डाल देते हैं ताकि हम पेजेस पे नेविगेट कर सके अच्छे से। सी अब हम एक जगह चेंज किए और ये दोनों ही जगह पे चेंज हो गया। दिस इज home dot JSP page and this is the contact us.jsp page. Now both pages reflected accordingly what we have changes in the common section, that is header and footer, anything. So common maintenance and easy usable, तो यहाँ पे इसको हम आसानी से, अब कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाना है तो कॉन्टैक्ट अस पे, लॉगिन पेज पे जाना है तो लॉगिन वाले पेज पे। तो अब ये सारे पेजेस को तुम इंक्लूड वाले फंक्शनैलिटी से
इजिली हेडर और फुटर मेंटेन करके सारे पेजेस पे जो जो भी तुमको कॉमन रखना है, किसी किसी को हो सकता है कि लेफ्ट साइड भी कुछ कॉमन रखना पड़ता है। लेफ्ट साइड में जनरली मेन्यू वगैरह चलाते हैं या फिर कुछ ट्री मेन्यू टाइप का चलता है। अगर तुम उस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हो तो ट्री मेन्यू या लेफ्ट साइड का मेन्यू भी तुमको कॉमन रखना है, तो उसको भी तुम उस तरह से अरेंज कर सकते हो पूरा जीयूआई के हिसाब से। एंड तुम लेफ्ट साइड को भी कॉमन रख सकते हो। तो लेफ्ट साइड के लिए फिर से एक अलग से जेएसपी बनाएंगे और उसका जो एक टेम्पलेट तुमको बना लेना होगा। जैसे हम यहाँ पे होम पेज में क्या बनाए, जो पहले हम HTML पेज एक होम डिजाइन किए, मतलब एक टेम्पलेट डिजाइन किए, और उस टेम्पलेट में हमको लगा ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, तो इन दोनों का हम अलग से जेएसपी बना लें। सो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट द टेम्पलेट। अपने वेबसाइट का पूरा एक टेम्पलेट बना लोगे एंड उस टेम्पलेट पे फिर तुम मास्टर पेज बना लोगे। मास्टर पेज की तरह ये काम कर रहा है, जहाँ पे हेडर एंड फुटर बिकम्स एज ए मास्टर एंड मेंटेनेंस शुड बी द एजी। सो उस तरह से एक मास्टर टेम्पलेट बना लिए और मास्टर टेम्पलेट पे हम लोग फिर सेक्शंस अकॉर्डिंगली, सेक्शंस जैसा बना मेरा, उस सेक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरा हेडर एंड फुटर सेक्शन कॉमन है, जो कि हम होम पेज पे भी रखें और कॉन्टेक्ट अस पे। इससे दो फायदा हो रहा है। एक तो ये जो कॉमन कोड है ये बार बार लोड नहीं होगा, तो तुम्हारा लोडिंग टाइम, बिकॉज वेबसाइट पे लोडिंग टाइम भी मैटर करता है, तो ये लोडिंग टाइम भी तुम्हारा क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो सिर्फ इसको लोड करेगा ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दूसरा पेज पे क्रिएट करेंगे तो सिर्फ ये सेक्शन इसको नया मिलेगा। बाकी ये सेक्शंस में बहुत कुछ कैश कर रखा होगा, जैसे हो सकता है इमेजेस हो, तो इमेजेस जनरली कैशिंग हो जाते हैं, तो वो बार बार लोड होने का भी प्रॉब्लम या स्लो लोडिंग का भी प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो इसका बहुत सारा फायदा है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हम उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाए हैं। एंड इस छोटे से एग्जांपल में सिंपल हम 3 सेक्शंस लेके चले हैं। इस फर्स्ट सेक्शन में हम सपोज किए हैं कि ये हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन में बहुत कुछ हो सकता है। फिर सेकेंड पार्ट हम मान के चले कि जिस पेज के लिए हम बना रहे हैं, जो पेज हम बना रहे हैं उस पेज का कंटेंट होगा। और थर्ड फुटर सेक्शन अगेन कॉमन होगा, तो ये सारे पेजेस पे फुटर एक जैसा दिखे, चाहे वो कलर से रिस्पेक्ट में हो, फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, या जो भी उसका कंटेंट है, तो वो फिर कॉमन दिखे। तो ये कॉमन सेक्शन को मेंटेन करने में आसानी होता है, दैट इज वाई। और यहाँ पे जेएसपी में फैसिलिटीज है जो इजिली ये पार्ट को सॉल्व करवा दे। क्लियर? समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. यस। तो ये बोल सकते हैं ना कि जेएसपी जो है वो कंपोनेंट फीचर्स को अप्रोच करता है, मतलब जैसे यहाँ पे तो कंपोनेंट तुमको बना हुआ, इसीलिए तो जेएसटीएल टैग जो है ये जेएसटीएल टैग का ही पार्ट है। तो जेएसटीएल टैग रियूजेबल कंपोनेंट तो हमको दे ही रहा है, और इस रियूजेबल कंपोनेंट से फिर हम अपने सेक्शंस को भी रियूजेबल कर रहे हैं, तो मेरा भी कंपोनेंट रियूजेबल हो गया, हम भी एक कंपोनेंट बना लिए एक तरह से। ये एक तरह से बोलो, अगर ये डॉटनेट में पढ़ोगे ना तो ये यूजर कंट्रोल कहलाता है, यहाँ पे कंपोनेंट कहलाता है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे ये तुमको मिलेगा फीचर्स, बट अकॉर्डिंगली फिर पीएचपी में भी तुम फाइल इंक्लूड करते हो और मल्टीपल फाइल को तुम एक पीएचपी में यूज कर सकते हो। तो हम एक तरह से बोलो रियूजेबल कंपोनेंट्स तैयार कर रहे हैं, और रियूजेबल्स तो जैसे सर रिएक्ट में भी अभी अब रिएक्ट जेएस में भी सर कंपोनेंट रहता है कि अगर आप जैसे वन वेब पेज एप्लीकेशन आप बना सकते हो, मतलब हर एक कंपोनेंट को आप हर जगह पे एक ही वेब पेज में अलग अलग कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, अभी तो वन सिंगल पेज वेबसाइट भी आ गया है ना। तो यस सर, यूट्यूब है उसका एग्जांपल। यस सर। यूट्यूब पे एग्जांपल छोड़ो, लेकिन ये बूटस्ट्रैप से बहुत इजीली तुम सिंगल पेज वेबसाइट हैंडल कर सकते हो। तो तुम सिंगल पेज वेबसाइट भी बना रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो एक तरह से मान के चलो कि हेडर फुटर वहां पे भी कॉमन हो जाता है, और सेक्शन हम लोग रिडायरेक्ट कराते हैं, मतलब नेविगेट करा देते हैं सेक्शन वाइज। तो वहाँ सेक्शंस है, सेक्शंस। यहाँ पे रियूजेबल कंपोनेंट्स है, हम दूसरे पेज को कॉल कर रहे हैं, वहां पे दूसरा पेज कॉल नहीं होता, वहां पे उसी पेज पे मैटर्स होते हैं
जस्ट वो हाइपरलिंक बने होते हैं और उस हाइपरलिंक के थ्रू हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर यूजर को उस सेक्शंस तक पहुंचाते हैं। तो वहाँ सेक्शन बेस्ड है, तो वो सेक्शंस कहलाएगा। यहाँ पे रियूजेबल कंपोनेंट बेस्ड है, तो यहाँ पे कंपोनेंट पूरा का पूरा हम रियूजेबल क्रिएट कर लिए और हम उसको फिर जितने भी पेजेस पे जरूरत है वो यूज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हो, तो हेडर अलग से, फुटर अलग से बना के रखें, तुम चाहो तो और भी कुछ सेक्शंस बना के रख सकते हो एंड उस सेक्शंस को फिर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटी है, किसी भी अच्छे टेक्नोलॉजी में ये यूटिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑलवेज होगा। तुम भी फील कर रहे होगे कि जो कॉमन सेक्शन है उसको हम कॉपी पेस्ट करें, सपोज हम कॉपी पेस्ट कर लिए सारे पेजेस पे, तो कॉपी पेस्ट कर तो लिए, फर्स्ट टाइम में तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम मेंटेनेंस में आओगे, सपोज एक मेन्यू ही हमको ऐड करना पड़ रहा है, अभी मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी नहीं था, अब हमको प्राइवेसी पॉलिसी भी डालना पड़ रहा है। तो मान के चलो तुम अगर कॉपी पेस्ट करके 20 पेज बनाए हो, तो सारे 20 पेज पे तुमको वो हाइपरलिंक डालना पड़ेगा। और अगर इस वाले तरीके से जाते हैं, रियूजेबल कंपोनेंट में जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हेडर वाला फाइल खोलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये मेन्यू सेक्शन है मेरा मान के चलो, यहाँ पे आके प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जोड़ देंगे। तो जैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जोड़ेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, जितना भी पेजेस कनेक्टेड होगा, 20 पेज हो या 40 पेज हो या 200 पेज हो तुम्हारे वेबसाइट पे, वो सारे पेजेस पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देते हैं मार्केट में है, उन सारे टेक्नोलॉजीज में ये फैसिलिटीज होगा। जैसे हम 3 का तो नाम गिनवा दिए, डॉटनेट में भी है रियूजेबल कंपोनेंट, जावा में पढ़ ही रहे हो, एंड पीएचपी में भी ये काम करते हैं, इंक्लूड वहां पे भी इंक्लूड करके ही टैग मिला हुआ है। तो इंक्लूड करके फाइल को इंक्लूड करते जाओ, जितना मर्जी उतना इंक्लूड करो। जैसे हम अभी 2 फाइल इंक्लूड करके बताए, तुमको 10 फाइल करना है, 15 फाइल करना है, जितना जरूरत है। कितना लोग 6 7 7 8 8 10 फाइल करते हैं, तो उस तरह से उनका जरूरत है, वो काफी हैवी पेजेस है, तो वो रियूजेबल कंपोनेंट को यूज करते हैं। जिस बटन पे, उस बटन पे पर्टिकुलर सेक्शंस को कॉल होता है, तो एक बटन पे कॉल किए तो सपोज फाइल इंक्लूड 1 वाला कॉल हो गया, दूसरे सेक्शन पे कॉल किए तो फाइल इंक्लूड 2 वाला कॉल हो गया। तो इस तरह से भी मैनेज किया जाता है वेबसाइट को। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हारा क्या सिनारियो है, तुम किस तरह से अपने वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. और किसी को कुछ पूछना है?